السلام علیکم خواتین و حضرات. اور بلا تاخیر کے میں کوشش کروں گا کہ یہ پروگرام شروع ہو جائے. اس قدر اہم اور اہم نام یہاں اہم شخصیات موجود ہیں. اور ایک تھوڑا سا میں اس پروگرام کے سلسلے میں جو اس کا پیرامیٹر ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک وضاحت کر دوں تاکہ ہمارے ڈیلیگیٹس کو جو ہے آسانی ہو اس پر بات کرنے کے لیے، پینلسٹ کو. اور ٹائٹل تو آپ جانتے ہیں، اردو شاعری کی نئی لفظیات اور نئے رجحانات. نئی لفظیات کے لیے ظاہر ہے یا نئے رجحانات کو بتانے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں پرانی لفظیات اور پرانے رجحانات کا علم ہونا ضروری ہے. اور یہ کہانی تو 700-750 سال پرانی ہے. اردو شعر و ادب کی تاریخ کم از کم تو اتنی تو ہے، اور اس میں کئی ادوار ہیں جس کے اندر خسرو سے لے کر کے ہم میر و غالب تک آ جاتے ہیں. دلی اسکول میں مل جاتا ہے، لکھنؤ اسکول میں مل جاتا ہے. زمانہ بدلتا ہے، اس کے رجحانات بدلتے ہیں، اس کے آئیڈیاز بدلتے ہیں. جب رجحانات بدلتے ہیں، آئیڈیاز بدلتے ہیں، تو نئے آئیڈیاز، نئے رجحانات اپنی نئی لفظیات کو ساتھ لے کر کے آتے ہیں. اقبال ہمیں مل جاتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ملتا ہے، جہاں پہ ہمیں ایک نیا آئیڈیا اس کے ہاں ملتا ہے، نئی لفظیات سے ہماری شناسائی ہوتی ہے. اقبال کے بعد ہمیں ترقی پسند تحریک ملتی ہے، ایک نیا رجحان، ایک نیا مینیفیسٹو، ایک نئی لفظیات، ایک نئی شاعری ہمارے سامنے آتی ہے، ریولوشنری شاعری ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے جدیدیت ہے، مابعد جدیدیت ہے، پھر ہمارا زمانہ ہے جہاں آج ہمارے شاعر شعر کہہ رہے ہیں، ادیب لکھ رہے ہیں. بہرحال، اور اس سے بھی پہلے، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو بر صغیر میں جو شعراء ہیں وہ خاص طور سے جن لفظیات میں بات کرتے آئے ہیں وہ کہیں دور سمندر پار بھی چلے گئے ہیں، جس کی بڑی مثال ہمارے سامنے عزیز نبیل صاحب کی ہے، قطر سے تشریف لائے ہیں. یہ اردو کی جو نئی بستیاں وہاں وسیع ہیں، وہ نئے زمانے کی نئی بستیاں ہیں، نئے رجحانات، نئے آئیڈیاز کے ماتحت وہاں شعر و غزل اور نظمیں کہی جا رہی ہیں. تو یہ رجحانات کیا ہیں، یہ نئی لفظیات کیا ہیں، اور یہ پرانے سے نیا ہم اسے نیا کیوں کہہ رہے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں؟ اس کے لیے میں سب سے پہلے دعوت سخن دے رہا ہوں ارشد جمال سالم صاحب کو. آپ وہاں بیٹھ کے کہنا چاہیں وہاں بیٹھیں، پوڈیم پہ تشریف لانا چاہیں پوڈیم پہ تشریف لائیں. ارشد جمال سالم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، جیسا کہ آج کا اس مذاکرے کا عنوان ہے اردو شاعری کی نئی لفظیات اور نئے رجحانات، اگر ہم دیکھیں تو یہ عنوان دراصل 2 اجزاء پر مشتمل ہے. پہلا جز ہے اس کا اردو شاعری کی نئی لفظیات، اور اس کا دوسرا جز ہے اردو شاعری کے نئے رجحانات. دیکھا جائے تو جہاں ایک طرف یہ دونوں اجزاء ایک دوسرے سے باہم مربوط نظر آتے ہیں، وہیں ان میں ابعاد بھی ہے. ضروری نہیں کہ لفظیات بدل جانے سے رجحانات بھی بدل جائے. اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نئی رجحان سازی کے لیے نئی لفظیات کی ضرورت بھی ہو. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم اس کے پہلے جز پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی اردو شاعری کی نئی لفظیات کیا ہے. لیکن اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعری میں نئی لفظیات کی شمولیت کی ضرورت کیوں آتی ہے. اس پر گفتگو سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 2 اشعار آپ کے روبرو رکھوں، آپ کے حریم میں پیش کروں. پہلا شعر سیف الدین سیف کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. دوسرا شعر مرزا نوشا کا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادو ساغر کہے بغیر. مجھے کہنے دیجئے کہ پہلے شعر میں سیف صاحب نے بات کے رنگ بدلنے کے لیے، انداز بیاں بدلنے کی جو بات کی ہے، وہ دراصل ہمیں اشعار میں نئی لفظیات کو برتنے کی ترغیب دیتے ہیں. لیکن غالب کا شعر اس سے کہیں آگے بڑھ کر موضوع کے موقف کی وضاحت کرتا ہے. شعر کو ظاہری آنکھ سے دیکھیں، غالب کے شعر کو ظاہری آنکھ سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ایک مخصوص تناظر، یعنی بے خودی، مدہوشی، خود سپردگی اور مزید کچھ آگے چل کر فنا فی الحق کا اظہار مقصود ہے. لیکن اگر اس کا بغیر مطالعہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ غالب نے بادہ و ساغر کہہ کر
शेरियत की दो बुनियादें अलामत और इस्तिआरे का जिक्र किया है, जिसके बगैर शायरी का वजूद मुमकिन नहीं। हकीकत भी यही है कि अलामती निज़ाम की इर्तिफ़ा और इस्तिआराती हदूद की तोसी के लिए लिसानियाती तोसी और नई लफ्ज़ियात की शमूलियत अज़हद ज़रूरी है, जिसकी पौध रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली नित नई अशिया, रोज़ बरोज़ ईजाद होने वाले वसाइल और जदीद उर्म फ़नून की जुज़ियात से उठाई जाती है। क्या ज़रूरी है कि हम अब भी करबे हिज्र, रंजो हम से इजहार बेगानगी या फिर याद की शिद्दत के बयान के लिए बादानोशी और नयकशी के कलीशे का सहारा लें? हम चाय नोशी और सिगरेट नोशी से भी इस मुद्दा का इजहार कर सकते हैं। इन अल्फाज पर कुछ अशार मुलाहिज़ा करें और देखें कि किस तरह ये अलामत व इस्तिआरा की फ़ज़ा को तमाम तर मानवी उसद के साथ कायम करने में कामयाब है। शेर देखें, बिखरता जाता है कमरे में सिगरेटों का धुआं, बिखरता जाता है कमरे में सिगरेटों का धुआं, पड़ा है ख्वाब कोई चाय की प्याली में। तौफीक अब्बास ने एक शेर कहा कि छोड़ आया था मेज़ पर चाय, ये जुदाई का इस्तिआरा था। आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। और उमर नजमी का ये शेर देखें कि मेरे होठों पे किसी लम्स की ख्वाहिश है शदीद, मेरे होठों पे किसी लम्स की ख्वाहिश है शदीद, ऐसा कुछ कर मुझे सिगरेट को जलाना न पड़े। एक और शेर देखें कि ज़रा सी चाय गिरी और दाग दाग वरक, ये ज़िंदगी है कि अखबार का तराशा है। हाज़रीन, और भी बेशुमार अशार मिल जाएंगे जो चाय और सिगरेट के तवस्सुस से अलामात व इस उर्दू शायरी के अलामात व इस्तिआरात की तौसीक़ करते हुए हमें नज़र आए। हाज़रीन, एक ज़माना था जब मुरासलत के लिए कबूतरों का इस्तेमाल होता था, फिर डाक के निज़ाम ने उसकी जगह ले ली। आगे चलकर सिल्कियात ने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई और अब लासिल्की निज़ाम के तवस्सुस से हम ईमेल, वॉइस मेल और वीडियो चैट तक पहुँच चुके हैं। जाहिर सी बात है, इन तब्दीलियों ने शेर व सुखन में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और हस्बे ज़रूरत अलामत व इस्तिआरे की तौसीक़ का सबब हुए हैं। इस ज़िम्न में कुछ अशार मुलाहिज़ा कर ले। फ़हमी बतारीनी का बहुत मशहूर शेर है, रात भी जब तुम्हारा फ़ोन आया, रात भी जब तुम्हारा फ़ोन आया, तुम हमारे ही पास बैठे थे। तज़ी भाभी का एक शेर कि मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता, मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। खुशी यह है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, सितम यह है कि मुझे खैरियत बतानी है। खुशी यह है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, सितम यह है कि मुझे खैरियत बतानी है। ये शेर नोट नहीं कर सका मैं किसका है, बहरहाल नहीं, मैंने कोशिश की है कि अब मैं शायद इसमें शामिल न करूं। वो भी खामोश हो गया मैं भी, वो भी खामोश हो गया मैं भी, यूं लगा जैसे फ़ोन कट गया हो। हाज़रीन, उर्दू शायरी में नई लफ्ज़ियात के हवाले से सिर्फ सफ़र के वसाइल की बात की जाए तो अशार का अंबोह पेश किया जा सकता है। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब तागे इंसान की सवारी हुआ करते थे, लिहाजा नासिरा ज़ुबैरी ने कहा कि छतों पे सोया हुआ निस्फ रात का जादू, छतों पे सोया हुआ निस्फ रात का जादू, सड़क पे भागते तांगे की टाप से टूटा। फिर परवीन शाकिर ने रेल को हिज्र की अलामत के तौर पर पेश किया। देखिए कि असर हाजिर के एक मकबूल शायर अफजल ख़ान ने इसी अलामत को कैसी शदीद कैफियत के सांचे में ढाला है। वो कहते हैं, इतनी शदीद आई मुझे अपने घर की याद, इतनी शदीद आई मुझे अपने घर की याद, घबरा के रेलगाड़ी की जंजीर खींची। और अगर इसी कैफियत की इंतहा मुलाहिज़ा करनी हो तो नौजवान शायर सईद शारिक का ये शेर समाअत करें। अब मैं पटरी नहीं बिस्तर पे पड़ा हूँ लेकिन, अब मैं पटरी नहीं
बिस्तर पे पड़ा हूँ लेकिन रेल अब भी मेरे ऊपर से गुजर सकती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाजरीन, सफ़र के वसाइल से मुतल्लिक जदीद तर लफ्ज़ की शमूलियत का हामिल फैसल आदिल का ये आफाकी शेर भी मुलाहजा करें। गर्मियाँ बढ़ती हैं जब भी इश्क के असफार में, गर्मियाँ बढ़ती हैं जब भी इश्क के असफार में, हम चला देते हैं ऐसी ज़िंदगी की कार में। सारी साहब बोलिए, आईपैक्स थोड़ा सा कट लीजिएगा उसको। बस रस जी, बहुत इस हवाले से रहमान हफीज़ का एक आखिरी शेर जो इस पूरे महकमे की कहानी के साथ साथ हमारे माजी की दास्तान को भी अपने अंदर समोए हुए है, मुलाहिजा करें और अंदाज़ा लगाएं कि शायरी किस किस तर्ज से दिलों पर ज़रबे कारी लगाती है। रहमान हफीज़ का शेर कुछ यूँ है, जहाज़ उड़ाते मेरे बालकों को क्या मालूम, जहाज़ उड़ाते मेरे बालकों को क्या मालूम कि उनके बाप को गाड़ी में जोता जाता था। क्या बात, क्या बात। ऊपर जिक्र करता शेर में एसी के इस्तेमाल से याद आया कि एक ज़माने में उर्दू शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल महज ज़राफ़त और मज़ाह पैदा करने के लिए किया जाता था, लेकिन फ़ी ज़माना उनको भी शेरी असास और फ़नी चाबुकदस्ती के साथ इस्तेमाल किया जाने लगा। मंसूर आफाक का एक शेर याद आया कि बस एक लंच ही मुमकिन था इतनी जल्दी में, बस एक लंच ही मुमकिन था इतनी जल्दी में, उसे भी जाना था मुझको भी काम करना था। बहुत बहरहाल उर्दू शायरी की नई लफ्ज़ियात के ये चंद एक हवाले थे, वरना इसका दामन बहुत वसी है। यहाँ एक बात का जिक्र मुनासिब मालूम होता है कि बाज़ औक़ात चंद मखसूस अल्फाज को आरामद बनाने की रविश आम हो जाती है, जिसकी जानिब हर शायर बरक़बत लपकता है। जैसे चंद साल कबल लोग चाक, मिट्टी और कूज़ागरी के दिलदादा हुआ करते थे। फ़ी ज़माना ख्वाब, आईना, आवाज़, परिंदा और शजर जैसी अलामतें मश्क़ सुखन का ज़रिया है, लेकिन इन सब में सबसे अहम बात यह है कि अल्फाज खा वो नए हों या पुराने, उनको उनकी बरत शेरियत के दामन को कितना वसी करती है और उसमें मानीयत के कैसे नए दरवा करती है, ये बात हमारे लिए सोचने की है। हाज़रीन, इसका दूसरा जुज़ भी कुछ उसके हवाले से लिखा था मैंने, लेकिन चूँकि वक्त की तंगी नामुमकिन है, इसलिए मैं यहीं पर इत्तफ़ा करता हूँ। इंशाअल्लाह मुज़ाकरा आगे बढ़ा तो उस हवाले से भी कुछ बात रखी जाएगी। ये सब बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया है उस बात को, और एक बहुत ही दिलचस्प बात आपने इसमें जो नुक्ता बयान किया है कि बहुत मुमकिन है कि रुझानात बदलने से लफ्ज़ियात पे असर ना पड़े, बहुत मुमकिन है कि लफ्ज़ियात के बदल जाने से रुझानात, लेकिन ग़ालिबन पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं हो पाई वो चीज़। और आपकी तरफ ही आप कहाँ तो तशरीफ़ रखिए इत्मीनान से, या आप यहाँ आ जाएँ। जी जी जी, जो सारा गुफ्तगू साजिद साहब ने की, बहुत मुदल्लर और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे अशार आपने सुनाए, सामईन महजूज़ भी हुए। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो आपने पूरा मुकदमा कायम किया है, इसमें किसी हिंदुस्तानी शायर का भी शेर कोट कर दें। बहरहाल मैं अपना शेर इस हवाले से, मैं अपना शेर दलील के तौर पर, जी सर, तरुणा मिश्रा का मैं अपना शेर सिगरेट के हवाले से एक पेश कर दे रहा हूँ कि कश मुसलसल लीजिए तो ज़िंदगी आसान है, कश मुसलसल लीजिए तो ज़िंदगी आसान है, वरना इस सिगरेट के बुझने का कभी इम्कान है।